السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرات، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرات، آج میں یہاں پر پروگرام کرنے آیا تھا تو مولانا عبد المطلب صاحب نے مجھ کو پکڑ کر کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیجیے، تو میں نے ان کے خواہش کو پورا کرتے ہوئے، ان کی بات کو پورا مانتے ہوئے ان کی ایک ویڈیو بنانا چاہا۔ تو حضرات، وہ بتا رہے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنانا کہ حضور کے معجزات کے بیان میں، کہ حضور کا معجزہ کیا ہے۔ حضور کے معجزات پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ یہ بات عبد المطلب صاحب نے مجھے یہ بتائی کہ بنگال میں وہابیت اور دیوبندیت ان کے حضور کے معجزات پر اور علم غیب پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ حضور کے علم غیب پر لوگوں طرح طرح کے باتیں اور طرح طرح کے باتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ رات تو میں ان کی باتوں کا رد کرتا ہوں اور دلیل کے ساتھ رد کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرات، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 219، فصل الثالث میں ہے، حدیث نمبر 5618 کہ وعن جابر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لما قذبنی قریش قمت فی الحجر فاجل اللہ لی بیت المقدس فتافقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، متفق علیہ۔ یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیثیں بھی اس میں شامل ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب قریش نے مجھ کو جھٹلایا، لما قذبنی، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حجر کعبہ میں کھڑا ہوا تھا، یعنی میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، یعنی بیت المقدس کو بلند و بالا کر دیا، اور میں ان کی نشانیوں کو بتلانا شروع کر دیا اور ان کو دیکھتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے اٹھا دیا، بلند کر دیا، اور میں جب قریش کے لوگوں نے، جب کفار قریش نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس گئے اور وہاں نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے انبیاء نے نماز ادا کی، تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں کے ستون کتنے ہیں، کھمبے کتنے ہیں، دیواریں کتنی ہیں؟ یہ طرح طرح کے کفار قریش نے سوال حضور سے کیا، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران و پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس پریشانی کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو بلند فرما دیا اور حضور کے سامنے ظاہر کر دیا، جسے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور اس
बैतुल मुक़द्दस के सुतून को यानी खंभे को और उसके दर दीवार को बताते थे कि हुजूर यहाँ यहाँ इतने सुतून हैं, यहाँ यहाँ इतने खंभे हैं। तो हजरात ये बात है कि जो बंगाल के देवबंदी वहाबियत सवाल करते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो इस हदीस से और इस बात से उनके सवालों का जवाब मैं देता हूँ और उनकी बातों को रद्द करता हूँ। अगर नहीं है हुजूर को इल्म गैब, तो कोई तुम भी ऐसी दलील लाओ जिसे साबित होता है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे फतवे क्यों देते हो, ऐसी बातें क्यों लाते हो जिससे तुम इतराज़ात हुजूर पर इल्म गैब ना होने की दलील कहते हो, और लाओ और साहसे सित्ता में से कोई ऐसी किताब लाओ जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफी हो। हजरात और दूसरी हदीस में यह है कि वअन जाबिर समूरत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी ला आरिफु हजरन बिमक्कत काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबसा इन्नी ला आरिफहु अलआन। हज़रत जाबिर बिन समरा से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ जो मक्का में मेरे नबी बनने से पहले मुझे सलाम किया करते थे। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को फरमाते हैं कि जब मैं नबी होने का दावा नहीं किया था मक्के में, उस वक्त भी पत्थर मुझको झुककर सलाम किया करते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुककर दूर दूर से दरख्तों सलाम किया करते थे और झुककर हुजूर को सलाम किया करते थे। और मिशकात शरीफ की हदीस सफ़ा नंबर 201 और हदीस नंबर 5605 में है कि हज़रत जाबिर व अनस इन अहल मक्का सअलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयातन फअराहुमुल क़मर शिक़्क़तैन हत्ता राउल हिराअन बैनहुमा। हज़रत अनस से रवायत है कि अहले मक्का ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, किसी निशानी के बारे में सवाल किया, किसी निशानी के बारे में पूछा, तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए और उन्होंने एक हीरा पहाड़ के दरमियान और एक इस पहाड़ के दरमियान और दूसरा उस पहाड़ के दरमियान चाँद को कर दिया। और जो इतराज़ात करते हैं कि मेरे आका को कोई मोजज़ा नहीं हासिल है, मेरे आका को कोई इल्म गैब हासिल नहीं है, अगर मेरे आका को कोई मोजज़ा नहीं हासिल होता तो मेरे आका चाँद को कैसे 2 टुकड़े कर देते, मेरे आका डूबा हुआ सूरज को कैसे ले आते, मेरे आका के सामने दरख्त झुककर कैसे सलाम करता, मेरे आका की नबूवत से पहले कैसे पत्थर झुककर सलाम करता। मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे कसम है कि जब मैं नबी होने का दावा नहीं किया था, मेरे बास से पहले भी आज तक मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरे नबी होने से पहले, जो मेरे नबी होने से पहले जो मुझको झुककर सलाम किया करते, ये वही पत्थर जो मुझको झुककर सलाम किया करते थे। हदीस नंबर 5606 में सफ़ा नंबर 201 में है, अन इब्न मसूद क़ाल अनशक़ल क़मरु अला अहादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़तैन फ़िरक़तन फ़ौक़ल जबल फ़िरक़तन दूनहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू। हज़रत इब्न मसूद से रवायत है
रवायत है कि चाँद के 2 टुकड़े हुए हुए चाँद के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के नीचे हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए काफिरो, तुम इस बात के लिए गवाह हो जाओ कि हुजूर ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, तो एक पहाड़ के इस पार चाँद है तो पहाड़ के नीचे एक चाँद है। हाँ, तो इस सब हदीसों से ये बात पता चली कि हुजूर को इल्म गैब हासिल है। और जो लोग इतराज़ात करते हैं कि हुजूर को इल्म गैब हासिल नहीं है, तो वो हदीस लाएं सहासे सिस्ता में से कोई एक ऐसी हदीस पेश कर दे जो हुजूर के इल्म गैब की नफ़ी करे, इस बात की मुझे दलील दे। अगर वो दलील देते हैं तो मैं उनकी बातों को मानता हूँ, अगर दलील नहीं देते हैं तो फिर क्यों ऐसा सवाल उठाते हैं, ऐसी बातें क्यों उठाते हैं कि हुजूर के इल्म गैब की नफ़ी करते हैं, हुजूर के इल्म गैब पर इनकार करते हैं। तो हज़रात इन सबको चाहिए कि हुजूर के इल्म गैब को माने, हुजूर से मोहब्बत करे, ना कि हुजूर से बुग़्ज़ करे, जैसा कि मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर ने की है, जैसा कि मोहब्बत फ़ारूक़ आज़म ने जैसा कि हज़रत अली ने हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, जैसा कि हज़रत उस्मान गनी ने मोहब्बत की है हुजूर से, ना कि अबू जहल की तरह मोहब्बत करें, ना कि उतबा शैबा की तरह करें। हज़रात, तो इस तरह मोहब्बत करें जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हुजूर से मोहब्बत की है। और इस तमाम हदीसों से पता ये चला, मालूम ये हुआ कि हुजूर को इल्म गैब है हासिल है, और मोजज़ा ये सब हदीसों साबित हुआ है कि हुजूर मोजज़ा दिखाते भी हैं।